الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص، تین اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا۔ نمبر 2، میری سنت پر عمل کرنے والا، میری سنت پر۔ نمبر 3، مجھ پر درود پڑھنے والا، مجھ پر۔ اب باری باری سب پر غور کریں۔ ہم مسلمان کی پریشانی دور کرتے ہیں؟ بہت کم بچے ایسے ہوں گے۔ جتنے دن میں آپ کے پاس وقت گزار رہا ہوں مجھے بہت کم بچے ملیں۔ زیادہ بچے پریشانی زیادہ کرنے والے، دور کیا کریں گے؟ پریشانی بڑھانے والے۔ پریشانی بڑھانے والے بچے زیادہ ہیں، پریشانی تکلیف دینے والے زیادہ ہیں، اور مصیبت پر خوش ہونے والے زیادہ ہیں۔ کسی کی چیز چوری کر لیتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، مذاق مسخری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اور جس کو سبق یاد نہیں ہوتا اس کو برا بلا کہتے ہیں، نالائق کہتے ہیں، اس کو کند ذہن کہتے ہیں، طرح طرح کے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو پہلا شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ کسی کے پاس پینسل نہیں، کاپی نہیں، تو آپ اپنے امی ابو سے پوچھ کر آئیں گھر سے۔ اب خود نہیں دے سکتے، اپنی امی ابو کی اجازت کے بغیر پینسل کاپی کسی کو دے سکتے نہیں۔ آپ امی ابو سے پوچھ کر آئیں کہ اگر میرے دوست کو ضرورت پڑی تو میں کیا پینسل شیئر کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ ٹیفن جو کھانا ہے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے سر سے حدیث سنی ہے کہ جو امتی کی پریشانی دور کرے گا قیامت والے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو امی جی، ابو جی، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کر سکوں، پانی پلا سکوں۔ اگر کلاس میں میرے پاس پانی ہے، میرے کسی بھائی کو ضرورت ہے تو میں اس کو پانی پلا سکوں، میں اس کے ساتھ پینسل شیئر کر سکوں، میں اس کے ساتھ ڈائری شیئر کر سکوں، بلکہ ڈائری لکھ کر دوں، اس کی پریشانی دور کروں۔ اگر کسی نے ڈائری نہیں لکھی، کمزور بچہ ہے، کند ذہن ہے، ویک سٹوڈنٹ ہے، ویکر ہے، تو میں اس کی مدد کروں ڈائری لکھنے میں، اس کی مدد کروں کہ مجھے ثواب ملے گا، اور یہ حدیث پر عمل کرنے کی نیت بھی ہو، یہ حدیث پر عمل کرنے کی نیت بھی ہو کہ میں پریشانی دور کر رہا ہوں کسی کی۔ تو کسی کو سبق یاد نہیں ہو رہا اس کو سمجھا دیں، میتھ کا کوئی ٹاپک ہے تو میتھ کی آپ کو سمجھ آئی اس کو سمجھا دیں، کسی بھی سبجیکٹ کی آپ کو سمجھ آئی دوسرے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے کلاس فیلو آپ کے دوست کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کی پریشانی دور کریں۔ امی ابو کی بھی پریشانی دور کرنی ہے۔ امی نے بولا آپ ڈائری کمپلیٹ کر رہے تھے، آپ اپنا ہوم ورک کر رہے تھے، تو امی نے آواز دی بیٹا مجھے پانی چاہیے، تو سارے کام کاج چھوڑ کر امی کو لبیک بولیں، امی میں حاضر ہوں، میں اپنی امی کو پانی دوں گا۔ بھائی بیٹھے ہوں، بہنیں ساتھ بیٹھی ہوں، تو بھائی کہے میں جاؤں گا، بہن کہے میں جاؤں گی، اس طرح جذبے سے کہ میں پریشانی دور کر رہا ہوں اپنی امی کی، اپنے ابو کی پریشانی دور کر رہا ہوں، اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی پریشانی دور کر رہا ہوں، تو کیا ملے گا؟ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص ہوگا جو کسی کی پریشانی۔ تو ہم تو کسی کی چوری کر دیتے ہیں، پریشانی تو بڑھا دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز چوری کر لی، ہمارے بچے نہیں کرتے۔ ایک بچے پہ مجھے خوشی ہوئی، وہ بچہ چہرہ مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا، وہ بچہ 50 روپے ملے، اس کو 50 روپے ملے تو وہ تقریباً ساری کلاسز میں گیا، بچے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کس کے 50 روپے۔ مجھے وہ اتنا پسند آیا وہ عمل کہ اسکول والے بچے تو پیسے چرا لیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں، چوری کرتے ہیں۔ وہ بچہ کتنا پیارا بچہ 6 کلاس کا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تمام کلاسز میں جا کر اس نے وہ 50 روپے دیے، وہ مجھے دے رہا تھا، میں کہ بیٹا مجھے نہ دے، میں کہاں سے اس کے مالک کو ڈھونڈوں گا، کیونکہ یہ پہنچانا پیسے ضروری ہے، تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور ڈھونڈا بھی ہوگا، میں حسن ظن رکھتا ہوں انہوں نے 50 روپے متعلقہ بچے تک پہنچائے ہوں گے۔ ایسے بچے بنے نا، تو کسی کو چوری کر کے کسی کے پیسے، کوئی چیز چوری کر کے اس کو تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا، بلکہ اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے، پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہوگا عرش کے سائے کے نیچے؟
जो सुन्नत पर अमल करेगा। किस पर अमल करेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, वो भी अर्श के साए के नीचे होगा। अब गौर करें, अब साहब मैं भी करता हूं, हम सुन्नत पर अमल करते हैं? हम कितना सुन्नत पर अमल करते हैं? बहुत कम। बच्चे खड़े होकर खा पी रहे होते, मैंने देखा है अक्सरियत बच्चों की खड़े होकर खा पी रही होगी है। खड़े हैं तो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। बेटा कोई भी चीज है आपने बैठकर खानी है, बैठकर पीनी है। ये आज से जहन बना लें। टीचर्स भी प्लीज इसमें साथ दें। मैं अकेला देखा, अकेला कुछ नहीं हूं जब तक आप साथ नहीं देंगे। बच्चे जहां आपको मिले खड़े होकर खा रहे हैं या पी रहे हैं, उनको फौरन बिठाएं, आपको सवाब मिलेगा। आप सुन्नत पर अमल करवाएंगे, इंशाअल्लाह आप भी अर्श के साए के नीचे होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आप बच्चों को सुन्नत पर अमल करवाएंगे इस हदीस के मुताबिक, ये हदीस जहन में हो, फिर अमल करें, फिर सवाब मिलेगा। बैठकर पानी पीना है, दाएं हाथ से पानी पीना है, सुन्नत के मुताबिक पानी पीना है, ये सारे काम सुन्नत के मुताबिक करना है। मगर आजकल चंद लोग जो अपने आप को आजाद ख्याल कहते हैं, वो कहते हैं ये दीन, ये दकियानूसी दीन है, फरसूदा दीन है। वो इस दीन को क्या कहते हैं? हमारे मजहब इस्लाम को क्या कहते हैं? दकियानूसी दीन है, फरसूदा दीन है, कि ये दीन ऐसा है जिसमें खुशी गमी पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये क्या बात हुई? दुनिया चांद पर चली गई और ये अभी तक बैठकर पानी पी रहे हैं। ये दुनिया कहां पहुंच गई? दुनिया टेक्नोलॉजी में माहिर हो गई और अभी तक ये पुरानी बातें कर रहे हैं, 1400 साल पहले की बातें कर रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पानी पिया, ऐसे खाना खाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल डाल ढंग तौर तरीका ये था। तो वो इस चीज को पसंद नहीं करते। ये याद कर लें, जो रिसर्च है, साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियात के माहिर जो लोगों की साइकी को जानते हैं, साइकी को पढ़ते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं जिनके वालिदैन, जिन बच्चों के वालिदैन ज़ाद हयाल होते हैं, लिबरल होते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, उनके बच्चे कदामत परस्त जिनके वालिदैन होते हैं, उनके बच्चों का हाफिजा कभी होता है, जहन मजबूत होता है, मौत से डरते नहीं। आजाद हयाल जिनके वालिदैन होते हैं, उनके बच्चे मौत से डरते हैं, वो बिल्ली को देख के डर जाते हैं, चूहे को देख के डर जाते हैं। मगर जो कदामत पसंद होते हैं, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, वो मौत से डरते नहीं। उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। तो अगर जहन आजाद हयाल लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों का जहन अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सुन्नतें सिखाएं। हम तो अपने बच्चों को उस नबी के कदमों में ला रहे हैं, तो हम सुन्नत पर अमल करेंगे, आजाद हयाल लोगों की तरह नहीं होंगे। हमारी डोर किसके हाथ में है? नबी पाक के। हमारी डोर, हमारे गल में पट्टा किसका है? जो आवारा कुत्ता होता है, आजाद कुत्ता होता है, वो बच नहीं पाता, वो जिंदा ज्यादा अरसा रह सकता नहीं, उसको कोई ना कोई मार देता है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो इसका मतलब यह है ये कुत्ता किसी के अंडर है, उसको मारना भी जुर्म है, कोई मारेगा तो उसकी सजा है। और जिसके गले में पट्टा नहीं, जो आजाद है कुत्ता, और जो अपने आप को कहते हैं हम आजाद हयाल हैं, तो वो आजाद कुत्ते की तरह हैं। तो वो इसी तरह उनकी मौत वाकया हो जाती है, उनका कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं होता, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं होता, उनके लिए कोई फातिहा करने वाला नहीं होता, बल्कि उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए लोगों को खरीदा जाता है, लालच दी जाती है। हुफाज को, जो कारी बच्चे हैं कि आप कुरान पढ़ें, आपको बिरयानी खिलाई जाएगी, आपको पैसे दिए जाएंगे। जो आजाद ख्याल लोग मरते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई दुआ भी करता? जब गल में पट्टा होगा, नबी पाक का पट्टा होगा, और जिनकी डोर नबी पाक के हाथ में होगी, वो किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, जब वो दुनिया से जाएंगे तो सारे उनके लिए रो रहे होंगे, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए लोग तरस रहे होंगे, उनकी मैयत को गुस्ल देने के लिए लोग तरस रहे होंगे। जो लोग लिबरल म्यूजिक रूह की गिजा है,
हम कहते हैं कुरान रूह की ग़िज़ा है। म्यूजिक अगर रूह की ग़िज़ा होती तो जब आपके घर में कोई फोदगी होती है तो फिर म्यूजिक लगाया करें, कुरान क्यों पढ़ाते हैं? मस्जिद में म्यूजिक की आवाज आए तो डर क्यों जाते हैं? मोबाइल की ट्यून बंद क्यों करते हैं? या फिर फोदगी वाले दिन क्यों नहीं म्यूजिक लगाते अगर ये रूह की ग़िज़ा है? अगर इसको जायज समझते हो, अगर आप इसको अच्छा अमल समझते हो कि इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें जज्बा मिलता है, हम नेक काम करते हैं, तो फिर आप फोदगी में भी लगाया करें ना, मस्जिद में भी म्यूजिक लगाया करें। क्यों डरते हैं लोगों से अगर ये नेक काम है? हम कुरान को कहते हैं ये रूह की ग़िज़ा है, तो कुरान सुनने में हम डरते किसी से नहीं। इसका मतलब है दिल में चोर है, म्यूजिक अच्छा काम नहीं। ये हमको आप मुतमिन कर रहे हो कि म्यूजिक अच्छा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कैसे मुतमिन करोगे? आजाद ख्याल, कौन जनाजा पढ़ेगा आपका? कौन आपके लिए दुआ करेगा? आजाद कुत्ते की तरह ना हो, उस कुत्ते की तरह बने कि जिसके गले में पट्टा है। हम नबी पाक के सग हैं, हमारी डोर नबी पाक के हाथ में है, और ये डोर नबी पाक के हाथ में रही तो इंशाअल्लाह हम दुनिया से मुसलमान जाएंगे और हमारा जनाजा भी देखने वाला होगा। और हम जब कब्र में उतरेंगे इंशाअल्लाह, जब सवाल होगा नबी पाक के बारे में कि आप नबी पाक के बारे में क्या कहते थे, दुनिया में इन साहिब के बारे में क्या कहते थे, तो हम कहेंगे हुआ रसूलुल्लाह, वो नबी पाक हैं हमारे। हम बोलेंगे तो आजाद ख्याल जो लोग हैं उनके बच्चों का जहन क्या होता है? कमजोर। ये कौन कह रहा है? साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात, और जो कदामत परस्त होते हैं, पुरानी रवायात को, अपने आबा व अजदाद की अच्छी रवायात पर अमल करते हैं, उनके बच्चे जीनियस इंटेलिजेंट होते हैं। और कितने परसेंट? तकरीबन 70% से ज्यादा बच्चे लायक होते हैं कदामत परस्त लोगों के। और जो लिबरल आजाद ख्याल होते हैं उनके बारे में जो बताया जाता है 50 से कम % बच्चे उनके लायक होते हैं, जीनियस होते हैं। ये डरपोक होते हैं। आजाद ख्याल लोगों के बच्चों के जो जहन ये कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, डरते हैं, मौत से डरते हैं, दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में होती है। तो आप तमाम बच्चे नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। कुरान पाक में क्या फरमाया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। कुरान क्या फरमा रहा है? बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। इनका चाल डाल, खाने पीने का तरीका, चलने फिरने का, बोल चाल का तरीका, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर रब ताला ने फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो। गौर करो, कुरान ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, मगर कुरान ने किसी जगह यह नहीं बताया कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, और इसमें दुआएं कौन सी पढ़नी है। ये हमारे नबी ने बताया कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, नमाज में दुआएं कौन सी पढ़नी है। कुरान पाक ने, रब ताला ने ज़कात अदा करने का तो बताया, मगर निसाब के बारे में जो शरी मसाइल हैं ये नहीं बताए, ये नबी पाक ने बताए। कुरान पाक ने हज करने का तो बताया, मगर मीना में कितने दिन ठहरना है, अरफात में क्या काम करने हैं, ये कुरान पाक ने नहीं बताए। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर इन चीजों की एक्सप्लेनेशन की, इन चीजों की तफसीर बयान की, हमारे लिए आसानी की कि ये सारे अरकाने इस्लाम आसानी के साथ अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कदामत परस्त लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इसको करप्शन से पाक कर रहे हैं। अच्छा अखलाक वाले, बद अखलाक नहीं होते। ये जो पुरानी रवायात को मानने वाले बद अखलाक नहीं होते, जी आप वाले अल्फाज बोलते हैं। अम्मी से लब्बैक अम्मी जी, लब्बैक। ये लिबरल आजाद ख्याल लोगों के बच्चे पता क्या कहते हैं? अम्मी जल्दी बताएं, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। वही लिबरल लोग आजाद ख्याल अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में दाखिल करवाते हैं। तो ये आप हमें तो सेटिस्फाई कर लेंगे, मगर अल्लाह के रसूल को सेटिस्फाई क्या करेंगे? कब्र में क्या जवाब देंगे? अल्लाह को कैसे मुंह दिखाएंगे? तमाम बच्चे नियत करें
इस हदीस में आया कि सुन्नत पर जो अमल करेगा वो भी अर्श के साए के नीचे होगा, और जो नबी पाक पर दुरूद भेजेगा वो भी अर्श के साए में होगा। एक हदीस पाक याद आ रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक हदीस पाक में आता है, फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पर जिसने अमल किया अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ये हमें दकियानूसी वाली बातें कहते रहे, ये कहते रहे ये दकियानूसी दीन है, ये फरसूदा दीन है, ये पुरानी बातें हम नहीं मानते। तुम जाओ जहां जाना चाहते हो, तुम जाओ चांद पर और वापस मुड़ के ना आओ। हम आका की सुन्नतों पर हमारी जान कुर्बान है, हम नबी की सुन्नतों पर अपनी जान दे देंगे। हम बैठ कर पानी पिएंगे, दाएं हाथ से पानी पिएंगे, बैठ कर खाना खाएंगे, और अम्मी अब्बू को आते हुए अपनी नजरें झुका लेंगे, सलाम अर्ज करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे। हम किसी की गिबत नहीं करेंगे, किसी पर बदगुमानी नहीं करेंगे, लोगों से हुस्ने ज़न रखेंगे, हम लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम तिलावत कुरान करेंगे, रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अपने आप को पाक साफ रखेंगे, क्योंकि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। हम साफ सुथरे मुसलमान हैं। ऐसे लिबरल जो अपने आप को टिप टाप तो कर लेते हैं, ऊपर से बज़ाहिर ज़ाहिर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, मगर इनको गुस्ल के फराइज भी नहीं आते। इनसे पूछ लो कपड़े को साफ कैसे करते हैं, वुजू के फराइज क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज किससे टूटती है। इनसे ये मॉडर्न लोग, लिबरल लोग, आजाद ख्याल लोगों से पूछो, इनको नमाज पढ़ना नहीं आती, इनको अपना जिस्म साफ करना नहीं आता, इनको अपने कपड़े साफ करने नहीं आती, इनको ये मालूम नहीं कहां नमाज पढ़नी है, कितनी जगह साफ हो तो नमाज पढ़ी जाती है, तो नापाकी के क्या मामलात हैं इनको मालूम नहीं। हमारी गर्दनों में किसका पट्टा है? जिसके गले में पट्टा नहीं होता तो वो ज्यादा देर जिंदा और बुरी मौत मर जाता है। जिसके गर्दन में पट्टा नहीं होता वो बुरी मौत, उसको कोई उठाने वाला, आपने देखा होगा जिसके गले में, कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता, वो पड़ा होता है ना, इधर उधर बदबू आ रही होती है, गधा मर जाता है, उसको कोई उठाता भी नहीं। मगर जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, घर का होता है, उसका मालिक उसको उठा के ले जाता है अच्छी जगह पर रोता भी है उस कुत्ते के लिए, उसका मालिक रोता भी है, क्योंकि उसने उसको पाला होता है। और हमें किसने पाला? नबी पाक ने। देखिए अल्लाह पालने वाला हकीकी, मगर नबी पाक को इख्तियार दिया है। हमारे वालिदैन भी हमें पालते हैं ना, तो अल्लाह की इजाजत से पालते हैं। तो जिस नबी ने हमें दिया तो हम क्यों ना उनके गुण गाएं, हम क्यों ना उनकी नातें पढ़ें, हम क्यों ना उन पर दुरूद भेजें। नियत कर लें, हम मुसलमान की परेशानी दूर करेंगे, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की परेशानी दूर करेंगे, और क़यामत वाले दिन अर्श के साए में होंगे। हम सुन्नत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, इंशाअल्लाहुल करीम।